Hello students, good morning to all of you. This is Abhishek Agnihotri, your maths teacher from Springdale College, Pilibhit. I welcome you in Maths Planet, and as we discussed in last session that we will be having two sessions related to introduction of quadrilaterals. All right. So in previous session we were discussing about types of quadrilateral and what are the necessary conditions that should be there for being a quadrilateral. Okay, a general introduction of parallelogram we also discussed in that session, and the if number of sides are given in a regular polygon, things we completed in the last session. If you have not gone through that session, then you can find it on my channel. Now we are starting this session with the introduction of quadrilateral and specific properties of parallelogram. Okay, because your exercise 8.1 is completely based on properties of parallelogram. So let us start. Definition of the quadrilateral. A quadrilateral is a polygon with four sides. अब पॉलीगन अगर बोल दिया है तो इसमें ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि फिगर शुड बी एनक्लोज्ड. ओके, क्योंकि पॉलीगन वही शेप होती है, स्ट्रेट लाइंस, एनक्लोज्ड, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, पॉलीगन में आ जाती हैं. ओके, सो क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन विद फोर साइड्स. ऐसा पॉलीगन जिसमें फोर साइड्स होती हैं दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. You can see different types of figures in the diagram. Here are different types of quadrilateral on your screen. Yes. Now parts and properties of quadrilateral. Consecutive adjacent vertices. इसके बारे में देख लेते हैं. Consecutive vertices or adjacent vertices. Okay, so these are the same word if we are applying for quadrilaterals. Consecutive और adjacent ये दोनों same meaning के लिए, same sense के लिए refer करेंगे. Okay, these are vertices that are end points of the same side. एक ही side के दो end point पे जो भी angles form होते हैं या फिर जो भी vertices form होते हैं that is called adjacent vertices. P and Q, आप लोगों को एक फिगर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे. P and Q, these are consecutive or adjacent vertices of each other. Q and R is a pair of consecutive vertices. In the same way, R and S and P are two pairs of consecutive vertices. तो vertices के बारे में हमने पहले भी बताया था, जहां पे जिस पॉइंट के ऊपर दो साइड्स आपस में ज्वाइन होती हैं किसी भी पॉलीगन की, दैट इज कॉल्ड वर्टिस. या फिर हम अगर जनरल लैंग्वेज में बात करना चाहें कि फिगर का जो कॉर्नर होता है उसे हम लोग वर्टिस कहते हैं. ओके, नाउ कॉन्जिक्यूटिव एडजेसेंट साइड. कॉन्जिक्यूटिव का मतलब वही एक के बाद दूसरा आने वाला या फिर नेबर. ओके, कॉन्जिक्यूटिव या नेबर आर द साइड्स दैट हैव कॉमन एंड पॉइंट. ऐसी दो साइडें जिनका एक पॉइंट कॉमन हो एंड में, वो क्या कहलाती हैं, कॉन्जिक्यूटिव साइड. तो आप लोग देख सकते हैं फिगर में PQ लाइन सेगमेंट एंड QR लाइन सेगमेंट, दीज आर कॉन्जिक्यूटिव साइड्स, क्योंकि ये एक दूसरे से ज्वाइन हो रही हैं कॉमन पॉइंट के ऊपर. ओके, इफ वी टॉक अबाउट द रेस्ट पार्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव साइड्स, QR एंड RS, देख लीजिए एक बार. QR एंड RS, जहां पे कर्सर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये QR है और ये क्या है, RS है. ये दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव हैं. इसी तरह से PS एंड SR, ये भी क्या है, कॉन्जिक्यूटिव साइड्स. ओके, नाउ कमिंग टू अपोजिट साइड्स. अपोजिट का मतलब आपको पता ही है, एक दूसरे के सामने फेस रखने वाले जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं. अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर साइड दैट डू नॉट हैव कॉमन पॉइंट. क्वाड्रिलेटरल में अगर हम बात करें तो ऐसी दो साइड्स जिनका कोई भी पॉइंट कॉमन ना हो, दोज आर कॉल्ड अपोजिट साइड्स. PQ एंड RS, मैं यहाँ पे आपको कर्सर के थ्रू दिखा रहा हूँ. ये PQ है और ये वाली क्या है, ये RS है. ओके, तो PQ एंड RS आर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स. Similarly, SP and QR. SP is here and QR is here. SP and QR are pair of opposite sides. So we can easily say there are two
pair of opposite sides in a quadrilateral, 4 pair of adjacent sides and 4 pair of adjacent vertices. Okay, now coming to next slide, consecutive angles. जिस तरह से consecutive sides एक दूसरे के पास वाली होती हैं, उसी तरह से consecutive angles भी एक दूसरे के पास वाले ही होते हैं. neighboring angles जो होते हैं वो consecutive angles बोले जाते हैं. एंगल P यहाँ पे ये वाला और एंगल Q, these are neighboring angles, so these will be called as consecutive angles. Similarly, Q and R is another pair. R and S are also forming a pair of consecutive angles, and S and P, these are the last pair of consecutive angles in the given figure. Okay, opposite angles, जिस तरह से अपोजिट साइड्स जो थी वो एक दूसरे के सामने वाली साइड्स को अपोजिट साइड बोला गया था, इसी तरह से एंगल्स भी जो एक दूसरे की सामने अपोजिट एंगल्स बोला जाएगा. अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर एंगल्स whose vertices are not consecutive. क्वाड्रिलेटरल में ऐसे दो एंगल जो कॉन्जिक्यूटिव नहीं हैं वो अपोजिट एंगल्स बोले जाएंगे. ये जो P एंगल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, जहां पे कर्सर है मेरा, P एंड R, ये सेंसर आप देख रहे होंगे, P एंड R, तो ये दोनों क्या हैं, अपोजिट एंगल्स. इसी तरह से Q किसका अपोजिट है, S का. तो यहाँ पे अपोजिट एंगल्स के भी कितने पेयर बनेंगे, 2 पेयर्स. ओके, now diagonal. Diagonal of a quadrilateral is a line segment whose end point are two non-adjacent vertices of quadrilateral. ठीक है, कुल मिला के अगर हम ओवरऑल बात करें तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट वर्टिसेस होते हैं उनको ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग डायगोनल बोलते हैं. अपोजिट वर्टिसेस कौन से हैं, P एंड R. आपको जो फिगर में दिख रहा होगा P एंड R आर अपोजिट वर्टिसेस. सो P और R को ज्वाइन करती हुई लाइन और Q और S को ज्वाइन करने वाली लाइन, these are two diagonals. So in a quadrilateral we can say there are only 2 diagonals which can be formed. All right, now coming to next slide, sum of measure of all angles. If there is a quadrilateral, the sum of measure of angles will be 360 डिग्री. अगर इंटीरियर एंगल्स के सम की बात करें देन इट विल बी 360 डिग्री. एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R एंड प्लस एंगल S, you can see it on your screen in a form of equation. The sum of all these angles will be 360. Yes, this is the main topic which is going to help you out in solving exercise 8.1. So guys, please pay attention very carefully on these upcoming slides. Parallelogram. So a parallelogram is a quadrilateral in which 2 pairs of opposite sides are parallel. आपको quadrilateral ABCD दिख रहा होगा स्क्रीन पे. If 2 pair of opposite sides are parallel to each other, then we can say it is a parallelogram. इसमें AB parallel to CD एक पेयर हो गया. AB आपको सेंसर जहां पे दिख रहा होगा ये AB है, ये AB है और ये नीचे जो है ये CD है. ओके, तो AB एंड CD पैरेलल हैं. इसी तरह से BC एंड AD भी एक दूसरे के पैरेलल हैं. ओके, अ पैरेललोग्राम कैन बी डिनोटेड बाय द सिंबल दिस. सिंबल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रेक्टेंगल टाइप का. सो दिस is used for denoting a parallelogram. Parallelogram ABCD is there on your screen. The use of arrowheads pointing in the same direction to show that there are parallel in the figure. अब आप इस फिगर में स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है इसमें आपको 2 एरो दिख रहे होंगे, AD लाइन के along और BC लाइन के along. So it is showing that these 2 line segments are parallel to each other. Theorems related to parallelogram. There are some theorems on your screen which we are going to discuss in this video. First theorem is theorem of dividing diagonals, theorem of opposite sides, theorem of opposite angles, theorem of bisecting diagonals, theorem of consecutive angles. So these will be discussed in detail. First theorem is theorem of dividing diagonals. The theorem says
a diagonal divides a parallelogram into two congruent triangle. इसका मतलब अगर हम लोग किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल ड्रॉ करें तो पहले तो डायगोनल टू डायगोनल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो उनमें से कोई भी एक डायगोनल आप ड्रॉ करेंगे देन इट विल डिवाइड द पैरेललोग्राम इन टू ट्राइंगल्स विच विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. ओके, तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर. देन ABD, ये देखिए मैं सेंसर की हेल्प से आपको बताता हूँ. ABD, this triangle will be congruent to CBD, this CBD triangle. Okay, so these two triangles will be congruent to each other. Now coming to the proof of this theorem. प्रूफ कैसे होगा देखिए, लेफ्ट साइड में आपको सारी कंडीशंस दी हुई हैं और इन्हीं कंडीशंस के रीजन आपको अपोजिट में लिख के दिखाए गए हैं. ठीक है, फिगर पहले ऑब्जर्व कर लीजिए आप लोग. देयर इज अ पैरेललोग्राम ABCD, डायगोनल BD is dividing it in two triangles in which angles at the point B and D, these are denoted by angle 1, 3, 2 and 4. दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे. So ABCD is a parallelogram, it is given condition. Second given condition is AB parallel to DC and AD parallel to BC. ये क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों पेयर पैरेलल होंगे. तो अगर इसकी बात करें, एंगल 1 आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ एंगल 2 ये रहा. एंगल 1 और 2 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में है और एक ट्रांसवर्सल लाइन BD इनसे टच हो रही है. तो एंगल 1 and 2 will be equal to each other. Similarly, angle 3 and 4 will also be equal to each other. So, by alternate interior angle property, we can say these are equal. अब आपके जब दो एंगल इक्वल हो गए हैं तो इनके बीच में BD साइड जो दिख रही है, BD साइड इस ट्राइंगल का भी पार्ट है, ऊपर वाले ट्राइंगल का, और नीचे वाले ट्राइंगल का भी पार्ट है. तो BD साइड विल बी कॉमन by reflexive property. This property is called reflexive property. So you can see here two angles and side between them. कोई दो एंगल और उनके बीच की साइड दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल और उनके बीच की साइड के इक्वल है. ओके, so by ASA, angle side angle, we can say that these two triangles are congruent to each other. This is proof of this theorem. You can go through it or you can take a screenshot, otherwise you can check this video again and again till you are not clear with the theorem. Now secondly, theorem is theorem of opposite sides. Okay, opposite sides of a parallelogram are congruent. इसका मतलब जो अपोजिट साइड्स AB है वो CD के इक्वल होगी और AD साइड BC के इक्वल होगी. ठीक, if ABCD is a parallelogram then AB congruent to CD and BC congruent to DA, these will be equal. So this is theorem. Now in next slide we will see that how to prove this theorem. First, the figure is same as it was in the previous slide. The conditions we are going to take are here at the bottom of figure. Okay, ABCD is a parallelogram, it is given already in the question. Connected BD, B और D को कनेक्ट करके एक डायगोनल ड्रॉ किया गया है. सो दीज आर देयर आर फॉर्म्ड टू ट्राइंगल्स. अब जैसे पिछले हम लोगों ने क्वेश्चन में प्रूव किया था कि दीज टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट, तो सेम कंडीशन से पहले हम लोगों ने प्रॉपर्टी ASA अप्लाई की है और ABD ट्राइंगल को CDB ट्राइंगल के इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है. ठीक है, जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके सारे, एक ट्राइंगल के सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के इक्वल होंगे. सो AB विल बी इक्वल टू CD. AB ऊपर वाले ट्राइंगल का पार्ट है ये यहाँ पे, और CD नीचे वाले ट्राइंगल का पार्ट है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे और AD इक्वल हो जाएगा आपका BC के. ठीक है, तो बाय CPCT वी कैन से दैट अपोजिट साइड्स are equal to each other in the parallelogram. This was second theorem related to parallelogram.
एप्लीकेशन ऑफ एग्जाम्पल देखते हैं एक एग्जाम्पल। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ABCD। पेरीमीटर का मतलब मैं आपको बता देता हूं, किसी भी फिगर की पेरीमीटर होती है द सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स। किसी भी फिगर में जो साइड्स हैं उन सभी की लेंथ्स को ऐड करके जो रिजल्ट मिलता है दैट इज द पेरीमीटर ऑफ दैट फिगर। तो इसकी पेरीमीटर हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। आप लोगों ने अभी लास्ट थ्योरम में ये पढ़ा है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो AD साइड किसके इक्वल हो जाएगी? BC के इक्वल हो जाएगी। तो AD अगर 10 दे रखी है तो BC भी 10 हो जाएगी। ओके, BC 10 हो गई, ये आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। इसी तरह से AB साइड CD के इक्वल हो जाएगी। तो CD की लेंथ कितनी हो गई? यस, दैट इज 15 यूनिट। अब सेंटीमीटर है या मीटर है ये नहीं दे रखा है, लेकिन 15 यूनिट होगी। अब आपको चारों साइडों की लेंथ पता है थ्योरम के थ्रू। अब आप इन सभी को ऐड कर सकते हैं। 10 10 मतलब 20 हो गया, और 15 15 30 हो गया, और ये 30 + 20 टोटल हो गया 50। आप लोग ये देख सकते हैं, आंसर इज ऑन योर स्क्रीन। द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर इज 50। तो इसका मतलब आपने जो मेथड अप्लाई किया है वो करेक्ट है। ओके, सो लेट अस मूव टू सेकेंड एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द सेम थ्योरम। ABCD is a parallelogram. Here is given on your screen. If the perimeter of ABCD is 80, अगर कंप्लीट पेरीमीटर चारों साइडों का सम आपका 80 दे रखा है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ओके, तो आपको क्या करना है, देखिए मैं बता देता हूं आपको। AB की लेंथ जो दे रखी है वही CD की लेंथ हो जाएगी। AB है x - 20, तो CD भी x - 20 हो जाएगा। यहाँ पे जहाँ पे आपको सेंसर दिखाई दे रहा है, ये कितनी हो जाएगी? x - 20। इसी तरह से AD 10 दे रखा है, तो ये वाली BC साइड जो है ये भी 10 हो जाएगी। तो आप चारों साइडों को ऐड कर दीजिए, 10 + 10 + x - 20 अगेन प्लस x - 20, और इनका जो सम है उसे आप इक्वल रखेंगे, पेरीमीटर मतलब 80 के इक्वल। जब आप इक्वेशन को ट्रांसपोजिशन मेथड से सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द आंसर, द वैल्यू ऑफ x इज 50। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट थ्योरम ऑफ पैरेललोग्राम, दैट इज थ्योरम ऑफ अपोजिट साइड्स। ऑलराइट, opposite angles of a parallelogram are congruent। ओके, तो जिस तरह से अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं उसी तरह से अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है, जैसा कि फिगर आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल C एंड B एंगल विल बी इक्वल टू एंगल D। ठीक है, A वाला ये जो आपको दिख रहा है ये C के इक्वल होगा यहाँ पे, और B एंगल ये D के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये थ्योरम होती है। हाउ टू प्रूव दिस थ्योरम, बहुत ही इजी है। आप लोगों ने जैसे फिगर ड्रॉ करना है, पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया है, इट इज गिवन। अब AB साइड जो है वो AD साइड के इक्वल दे रखा है। तो ये स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, मैं आपको सिंपल ही बता देता हूँ। एक थ्योरम होती है, एक कंडीशन होती है, पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट मतलब पास पास वाले एंगल, जैसे एंगल A और D। ठीक है, A और D अगर एडजेसेंट एंगल्स को ऐड किया जाए, दीज आर सप्लीमेंट्री। ये दोनों क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक, मतलब 180 डिग्री फॉर्म करते हैं। तो आप लोग देखें A + D कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, ये वाला A प्लस ये वाला D। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस स्टूडेंट्स। यस, अगेन वी आर बैक ऑन द स्लाइड। A D के इक्वल हो जाएगा, इसी तरह से A D 180 के इक्वल, तो A + B 180 के इक्वल। तो जब आप रखेंगे A + D = 180, पहली इक्वेशन हो गई। अगेन A + B = 180, ये भी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब जब दोनों इक्वेशन 180 के इक्वल हैं तो आप कह सकते हैं कि A + D = A + B।
ध्यान से सुनिएगा, ए प्लस डी इक्वल टू ए प्लस बी, और राइट और लेफ्ट में ए आ रहा है, वो एंगल कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, क्योंकि एंगल ए लेफ्ट में भी आ रहा है, एंगल ए राइट में भी आ रहा है, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ओके, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। So these are some important theorems related to properties of parallelogram. I hope you are able to understand these theorems and are able to apply this in exercise 8.1 of class 9th. Okay, if you are new on the channel, you can subscribe our channel so that whenever new video is uploaded you will be notified on your screen. And if you are old student, then you can like the video and share it with your friend if you find it fruitful. Okay, in next video we will discuss the same topic. Till then, take care. Thank you.